morning to dear students. Today we are going to study about the chapter Indigo by Louis Fisher. About the author, Louis Fisher. He was born on 29th February 1896 in United States. He is an American journalist. His popular work is The God That Failed, A Life of Mahatma Gandhi. He won National Book Award in History and Biography in 1965 for A Life of Lenin. He died on January 15, 1970. A poor peasant, Rajkumar Shukla, met Gandhi at Lucknow session of the Indian National Congress in 1916. He wanted to inform Gandhi about the injustice done by the English landlords in Champaran. Gandhi had other appointments, but Shukla accompanied Gandhi everywhere, even to the ashram in Ahmedabad. Gandhi was impressed by Shukla's determination. He asked him to meet him in Calcutta. Dear students, in Indigo, Louis Fisher describes how Mahatma Gandhi took up the cause of the poor peasants of Champaran in 1916. The sharecroppers of Champaran were forced to grow indigo according to an old agreement. The cruel and cunning landlords extorted money from the poor and illiterate peasants. They made them sign a new agreement. They extorted compensation for freeing their land. Gandhi's long and heroic struggle ended with the victory of the civil disobedience. The English landlords were compelled to return 25% of the money they had extorted from the sharecroppers. डियर स्टूडेंट्स, जो इंडिगो है ये लुइस फिशर ने लिखा है और उन्होंने इसमें महात्मा गांधी ने कैसे पुअर पीजेंट्स को चंपारण के 1916 में उनकी मदद की थी और वो कैसे एक फ्रीडम फाइटर बने, ये चीज डिस्क्राइब की है। जो चंपारण के पीजेंट्स थे वो शेयर क्रॉपर्स थे और उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो इंडिगो की खेती करें। और ये जो लैंडलॉर्ड्स थे वो बहुत ही क्रूअल और कनिंग थे। वो पुअर पीजेंट्स जो थे वो इलिटरेट थे, तो उनको वो जबरदस्ती उनसे नील की खेती कराते थे, इंडिगो की। और अब वो एक नया एग्रीमेंट करना चाहते थे जिसमें कि वो उनको कंपनसेशन देना चाह रहे थे कि अगर वो अपने लैंड को फ्री कराना चाहते हैं तो पीजेंट्स को उसके लिए कंपनसेशन देना होगा, किसानों को उसके लिए कंपनसेशन देना होगा। गांधी जी के लंबे और बहुत ही बहादुरी से उन्होंने स्ट्रगल में आगे आके उन पीजेंट्स का साथ दिया सिविल डिसओबीडियंस के माध्यम से, और उन्होंने इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स को मजबूर किया कि वो किसानों का 25% जो पैसा है वो उनको वापस करें, जो कि उन्होंने उन शेयर क्रॉपर्स, उन गरीब शेयर क्रॉपर किसानों से उन्होंने कंपनसेशन के नाम से लिया था। Now see the summary. Gandhiji tells Louis Fisher when the idea of the departure of British came in his mind. It was 1917. Gandhiji had gone to Gandhiji had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress in Lucknow. A poor peasant came up to him. He was Rajkumar Shukla. He was from Champaran. He wanted him to come to his district. Gandhi had never heard of the place. It was near the kingdom of Nepal in Bihar. Shukla was a sharecropper. Rajkumar Shukla was illiterate but resolute. He had come to the Congress session to complain against the injustice of the landlord system in Bihar. Gandhi had an appointment in Kanpur and had to go to the other parts of India as well as.
as well. Shukla accompanied him everywhere. He even followed him to the ashram in Ahmedabad. He begged Gandhi to fix a date. Gandhi was impressed with Shukla's determination. He asked Shukla to come along with him. In Calcutta, he waited till Gandhi was free. सो डियर स्टूडेंट्स, गांधी जी जो हैं वो लुईस फिशर को बताते हैं कि कैसे उन्होंने अंग्रेजों के यहाँ भारत छोड़ने के बारे में उनके दिमाग में आया। और ये बात 1917 की है, जब गांधी जी लखनऊ गए थे दिसंबर में 1916 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन होने वाला था, एनुअल कन्वेंशन होने वाला था। उसमें वो गए थे और एक गरीब किसान उनके पास आया जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था। वह चंपारण में रहता था। वो चाहता था कि वे उसके जिले में जाएं, उसके डिस्ट्रिक्ट में जाएं और उनको न्याय दिलाएं। गांधी जी ने कभी उस जगह के बारे में नहीं सुना था और वो उनको बताते हैं कि ये बिहार में है। और शुक्ला जो है वो एक शेयर क्रॉपर था। शेयर क्रॉपर होते हैं जो उनकी जमीन नहीं होती है, लेकिन वो जमीन किराए में लेके अपने फसल का आधा हिस्सा जो है वो लैंडलॉर्ड को देते हैं। तो राजकुमार शुक्ला जो है वो एक अनपढ़ शेयर क्रॉपर था, लेकिन वो बहुत ही दृढ़ था। वो कांग्रेस कॉन्वेंशन में बिहार में लैंडलॉर्ड इनजस्टिस के लिए कंप्लेन लेकर गांधी जी के पास गया था। गांधी जी का एक कानपुर में अपॉइंटमेंट था, तो गांधी जी को वहां जाना था। शुक्ला जो है वो हर जगह गांधी जी के पीछे पीछे जा रहा था, वो उनको फॉलो कर रहा था। वो फॉलो करते करते उनको अहमदाबाद के आश्रम तक चला जाता है और वो गांधी जी से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक डेट फिक्स कर लें। गांधी जी देखते हैं कि वो शुक्ला जो है वो बहुत ही डिटरमाइंड है, बहुत ही दृढ़ निश्चयी है। तो वो शुक्ला से कहते हैं कि जब वो कलकत्ता आएंगे तब वो उसके साथ वहां चलेंगे। तो जब गांधी जी कलकत्ता आते हैं, वो गांधी जी का कलकत्ता में तब तक वेट करता है जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो जाते हैं।